افسران کے تقرر تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن محمد دیا گیا ہے اور حافظ محمد عمران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن تعینات، مسعود احمد کو ایڈیشنل ڈی جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ملیحہ ایسار کی خدمات راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئی ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، پنجاب حکومت نے 4 افسران کے تقرر تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن محمد عابد شبیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ حافظ محمد عمران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن تعینات، مسعود احمد کو ایڈیشنل ڈی جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی لگا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے 4 افسران کے تقرر اور تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن محمد عابد شبیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ حافظ محمد عمران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن تعینات کیے گئے ہیں۔ مسعود احمد کو ایڈیشنل ڈی جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ملیحہ ایسار کی خدمات راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ پنجاب حکومت نے 4 افسران کے تقرر اور تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن محمد عابد شبیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ حافظ محمد عمران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن تعینات کیے گئے ہیں۔ مسعود احمد کو ایڈیشنل ڈی جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ملیحہ ایسار کی خدمات راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئی ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اب بتاتے چلیں آپ کو کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور پنجاب حکومت نے 4 افسران کے تقرر اور تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن محمد عابد شبیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ حافظ محمد عمران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل پاک پتن تعینات کیے گئے ہیں۔ مسعود احمد کو ایڈیشنل ڈی جی راولپنڈی لگا دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ آسمان پر ہلکے بادلوں کی طرف سے تسلط جمانے کی کوشش۔ شہر کے چند ایک علاقوں میں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات نے بادل کی نقل و حرکت کو وقتی ابال قرار دے دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، دیکھیں، گزشتہ چند روز سے دھوپ کی جو پیش قدمی ہے کافی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی اور اچھی خاصی گرمی محسوس ہونے لگی تھی، خصوصاً دوپہر کے اوقات میں۔ شاید اسی وجہ سے بادلوں کو تھوڑا سا جوش آیا کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی یہ سمجھ لیا جائے کہ بادل اب طویل عرصے کے لیے غائب ہو گئے ہیں۔ تو غالباً اسی سوچ کے تحت اس وقت ہلکے بادل لاہور کی فضاؤں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش میں دکھائی دیتے ہیں اور اسی کوشش کے دوران جوہر ٹاؤن اور اس سے کچھ ملحقہ علاقوں اور چند ایک دیگر علاقوں میں، جن میں کینال بینک اور ہربنسورہ کا علاقہ شامل ہے، وہاں پر بس ایسے ہی بوندا باندی سی ہوئی ہے۔ مطلب قابل ذکر تو نہیں اس کو قرار دیا جا سکتا، لیکن بادلوں کی ایک کوشش ضرور ہے کہ جناب کسی حد تک گرمی کو پچھلے قدموں پر دھکیلا جائے، اور اس کوشش میں وہ بہت زیادہ کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ معمولی سی کمی ہوئی ہے ٹیمپریچر میں اور اس وقت بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، ورنہ گزشتہ روز تو جو دھوپ کی شدت تھی اس کے باعث اس وقت حدت محسوس ہو رہی تھی۔ اور ایک اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر ہے اس میں بھی معمولی سی کمی دیکھنے میں آئے گی، کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، یا شاید اس سے بھی تھوڑا سا کم ہی رہے۔ جب ان سے یہ استفسار کیا گیا کہ جناب یہ کوئی وقتی سا ابال ہے یا مطلب 1-2 روز تک بادلوں کے قیام کرنے کا ارادہ ہے، تو ان کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی کہ نہیں، یہ صرف آج تک کی ہے، آج تک یہ اسی طرح کچھ نقل و حرکت بادلوں کی چلتی رہے گی اور اس کے کچھ زیادہ طویل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ کل سے ایک مرتبہ پھر دھوپ جو ہے اس کو کسی قدر کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اب چونکہ گرمی کی آمد ہے تو اس تناظر میں یہ جو حالات وقتی طور پر پیدا ہوئے ہیں، موسم بہتر ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، خوشگوار ہوا ہے، تو میرا خیال ہے اسی کو غنیمت جاننا چاہیے اور ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ بس آپ آگے آنے والے دنوں کے دوران گرمی کا ہی راج ہوگا۔ جی سہیل کیسر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ٹاؤن شپ ہیڈ کوارٹرز ایس ایس پی آفتاب احمد پھلرون کی سی سی ڈی کارکردگی بارے پریس کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ جس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، قتلوں میں اس وقت 34% ڈیکلائن۔ لاہور میں 100 سے زیادہ، تقریباً 150 کے قریب موٹر سائیکلیں چوری ہوتی تھی، جن کی تعداد اب 10-12 پہ آ چکی ہے۔ 15 کی کالز رابری کی 200 سے زیادہ ہوتی تھی، جن کی تعداد اگین اب
8 और 10 के दरमियान में आ चुकी है। ये सारा कुछ पब्लिक के ताउन से मुमकिन हुआ। जब क्राइम कंट्रोल शुरू किया तो पब्लिक CCD के शाना बशाना खड़ी हो गई। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ने क्राइम फाइटिंग के ख़िलाफ़ इस मूव में मुकम्मल तौर पे CCD का साथ दिया। और अब मैं आता हूँ एक सीरियस मामला फैसल शफकत भट्टी, जिसने एक अपनी वीडियो वायरल की कि जी मैं अपने आप को अदालत में पेश करने के लिए, कानून का फेस करने के लिए मैं जा रहा हूं। उसमें मैं कुछ हकायक आपके सामने लाना चाहता हूं। फैसल शफकत भट्टी का क्रिमिनल रिकॉर्ड 14 कत्ल उसके रिकॉर्ड पर मौजूद है। 1997 में ये जुर्म की दुनिया में दाखिल होता है। इलाके का गुंडा, इलाके का डॉन, और जिसने भी इससे इख्तिलाफ राय किया, इसने इख्तिलाफ राय का जवाब अल्फाज से नहीं, गोली से दिया। इसकी कलियार जिम्मेदार फैमिली है उधर। इसके बाप का उनके साथ झगड़ा हुआ। उस झगड़े में इसका बाप मर्डर हो गया। उस मर्डर के जवाब में कलियार फैमिली का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7 लोग मर्डर कर दिए। और उसके बाद कलियार फैमिली के पास और कोई चारा नहीं था कि 7 बंदे मरवा कर भी इसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे और अपनी जान छुड़वाए। उसके बाद 2024 फरवरी सरगोदा में एक गरीब आदमी लेकिन बाशऊर और पढ़ा लिखा मोहम्मद नवाज, जो अपने आप को सादगी की वजह से और मिटे हुए होने की वजह से नवाज फकीर कहता था, उसका 3 मरले का रूड़ी का प्लाट, जिसे देहातों में रूड़ी होती है, उस पर फैसल शफकत भट्टी साहब ने कहा कि ये प्लाट मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि हुजूर आप मुरब्बों के मालिक हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी यहाँ पे रिहाइश है, मैं नहीं बेचना चाहता। उसने कहा तुम्हारी ये मजाल कि फैसल शफकत भट्टी कहे और तुम एक फ़कीर हो के इसको ना बेचो। इनकी आपस में इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। वो शायर आदमी था, फ़कीर आदमी था, उसने इसके खिलाफ एक नज़म लिख दी। उस नज़म पर ये 26 फरवरी 2024 को फैसल शफकत साहब अपने आप को फैमिली समेत मुल्क से बाहर ले जाते हैं। और 28 फरवरी को पूरे 2 दिन बाद नवाज का बेटा, जो एक गरीब मजदूर आदमी एक नाई की दुकान पे काम करता था, उसे गोलियों से भून दिया जाता है। 12 साल का ये उनकी बेटी बैठी है, ये उनका बेटा बैठा है, जो अपनी जिंदगी और जान बचाने के लिए इस वक्त लाहौर आके इन्होंने पनाह ले ली है। बिकॉज ये कहते हैं कि हमें गारंटी नहीं है कि हम इतने बड़े माफिया का मुकाबला कर सकेंगे कि नहीं। उसके बाद 28 मार्च को अभी ये काम एक नज़म के इंतकाम पर ये काम शुरू हो गया। 28 मार्च को नवाज का सगा भाई नज़र, उसे टारगेट किलर्स के जरिए मरवा दिया जाता है। देन उसके बाद अप्रैल में अभी ये एक नज़म का जवाब दिया जा रहा है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि तुम मेरे खिलाफ कोई नज़म भी लिखो। नज़र के दोनों भाई, नज़र के बेटे, भतीजे, एक भतीजा एक बेटा, नवाज के भतीजे, नज़र के 2 बेटे, नवाज फ़कीर के 2 भतीजे और उसके सगे भाई नज़र के 2 बेटे कैसर और आज़म, 16 अप्रैल को उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। पहले अगवा किया गया, बुरी तरह बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर सीने में गोलियां मार के उनको मार के वो लाशें भिजवा दी गई कि ये उस नज़म का जवाब दिया है हमने तुम्हें। 25 नवंबर 2024 नवाज, जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दर बदर ठोकरें खाता फिर रहा था, उसको और उसके दोस्त को गोलियों से छलनी करके मार दिया जाता है। एक नज़म का जवाब, 5 कत्ल, 6 कत्ल, 5 एक फैमिली के, 6ठा उनका नवाज का दोस्त। वजह क्या थी? इम्प्यूनिटी, बेखौफी से कत्ल। कोई है जो इनके खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्योंकि उनका झाका खुल चुका था।
एक कत्ल के मुकाबले में 7 कत्ल, एक नज़म के मुकाबले में 6 कत्ल, और आप उनका फैसल शफकत भट्टी साहब का आप मीडिया पे हुलिया देख सकते हैं। गले में सोने के बड़े बड़े कैंठे, हाथों में कैंठे, मुछें, बंदूकें, किसकी मजाल है जो इनके खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन वो एक चीज भूल गया था, कुदरत। कुदरत में जालिम की रस्सी तो दराज होती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हाई कोर्ट सीसीडी का शहरी का नाम कत्ल के मुकदमे में डालने का केस एसएसपी सीसीडी हेडक्वार्टर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश। पुलिस वालों ने एक और कत्ल केस में मुलजिम का नाम डाला हुआ है। मुलजिम वकील का मौक़िफ़, ये नाम हमने नहीं बल्कि ऑपरेशंस वालों ने डाला है। सीसीडी का मौक़िफ़, अदालत ने केस पर फैसला महफूज कर लिया। आपको बता रहे हैं हाई कोर्ट सीसीडी का शहरी का नाम कत्ल के मुकदमे में डालने का ये केस है। एसएसपी सीसीडी हेडक्वार्टर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। पुलिस वालों ने एक और कत्ल केस में मुलजिम का नाम डाला हुआ है। मुलजिम वकील का ये मौक़िफ़ है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अगर सुन पा रहे हैं तो इस केस के बारे में मज़ीद बताइएगा। इशफाक से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट सीसीडी का शहरी का नाम कत्ल के मुकदमे में डालने का ये केस है और एसएसपी सीसीडी हेडक्वार्टर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। पुलिस वालों ने एक और कत्ल केस में मुलजिम का नाम डाला हुआ है। मुलजिम वकील का मौक़िफ़, ये नाम हमने नहीं बल्कि ऑपरेशंस वालों ने डाला है। सीसीडी का मौक़िफ़। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक के इम्तहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। मैट्रिक का पहला पर्चा अरबी, कमर्शियल, जोग्राफिया और तारीख का लिया जाएगा। नहम के इम्तहानात 17 अप्रैल से शुरू होंगे। मैट्रिक का अमली इम्तहान 12 से 22 मई तक होगा। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें, पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक के इम्तहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर के जो तालीमी बोर्ड है उनकी जानिब से मैट्रिक के इम्तहानात की जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। पंजाब भर में जो मैट्रिक के सालाना इम्तहानात हैं, पहले सालाना इम्तहानात का आगाज 27 मार्च से होगा। मैट्रिक का पहला पर्चा अरबी, इसके साथ साथ जोग्राफिया, तारीख का लिया जाएगा और इसके साथ मैट्रिक का आखिरी पेपर जो है 16 अप्रैल को पंजाबी और तारीख इस्लाम का होगा। नहम के इम्तहानात 17 अप्रैल से शुरू होंगे और नहम जमात का पहला पेपर इकनॉमिक्स, जोग्राफिया, फुटबॉल, बिजली की वायरिंग के जो मजमून है उसका होगा। नहम जमात का आखिरी पेपर 8 मई को इस्लामियात लाजमी का होगा। मैट्रिक के अमली इम्तहानात 12 से 22 मई तक जारी रहेंगे। जी ठीक है आतिफ, आपका बहुत शुक्रिया। कि इस हादसा के खिलाफ शिकायत सेमेस्टर 6 की तालिबात का तदरीसी गफलत और हिरासानी का इल्ज़ाम। तालिबात का इल्ज़ाम है कि अहम मज़ामीन का निसाब मुकम्मल ना करवाया गया। गैर बयानी तदरीस से तालीमी बुनियाद मुतासिर हो रही है। शोबा इंतज़ामिया पर दबाव और धमकी आमेज़ रवैये के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर उस्मा कुरैशी के मुताबिक मामले को देख रहे हैं। आपको अपडेट करते चले यहाँ पर कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में BS इस्लामिक स्टडीज़ की तालिबात की इस हादसा के खिलाफ शिकायत। सेमेस्टर 6 की तालिबात का तदरीसी गफलत और हिरासानी का इल्ज़ाम। तालिबात का इल्ज़ाम है कि अहम मज़ामीन का निसाब मुकम्मल ना करवाया गया। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, और कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की इस्लामिक स्टडीज की तालिबात है जिनकी जानिब से वाइस चांसलर उसके साथ साथ वज़ीर आला को भी खत लिखा गया जिसमें कहा गया है कि जो तालिबात है वो तदरीसी अमल से की वजह से परेशान है। तालिबात के मुताबिक अहम मज़ामीन निसाब मुकम्मल नहीं करवाया गया। गैर मेरी तदरीस से तालीमी बुनियाद मुतासर हो रही है। शोबा इंतजामिया पर दबाव, धमकी अमेज रवैये के इल्जाम भी तालिबात ने लगाए। तालिबात का कहना है कि तहरीर दरख्वास्तें वसूल नहीं की जाती। वाइस चांसलर से मुलाकात मसाइल के एतराफ़ के बावजूद अमली इक़दाम नहीं हो सका। डॉक्टर उस्मा कुरैशी से 14 और 24 जनवरी को मुलाकात की तालिबात की जानिब से HEC से को भी दरख्वास्त जो है और शिकायत दर्ज की गई है। मुतलका असातिज़ा की तब्दीली और शफाफ इंक्वायरी की जाए, ये कहना है तालिबात का। ग्रेडिंग में इंतकामी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ की तहरीरी यकीन दहानी का भी मुतालबा किया गया है। तालिबात का कहना है कि मामला मामूली तनाज़ा नहीं बल्कि मुस्तकिल तालीमी नाइंसाफ़ी है। जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर उस्मा कुरैशी का कहना है कि इस मामले को देख रहे हैं और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर और मुतलका टीचर्स को भी इस हवाले से हिदायत जारी की गई। जी आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
पंजाब भर में नाकिस इंजेक्शन हेकोबॉल का मखसूस बैच फौरी वापस लेने का हुक्म दिया गया है। इंजेक्शन हेकोबॉल ML1 का बैच नंबर 13437HT गैर मयारी करार पाया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोलर का हंगामी मेडिसिन रिडॉल नोटिस जारी कर दिया गया है। अप्रैल 2026 तक एक्सपायरी वाला बैच इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पंजाब की रिपोर्ट में संगीन इंकशाफात सामने आए हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब भर में नाकिस इंजेक्शन हिकोबॉल का मखसूस बैच फौरी वापस लेने का हुक्म। इंजेक्शन हिकोबॉल ML1 का बैच नंबर HT 13437 गैर ब्यारी करार दिया गया है। सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, पंजाब भर में नाकिस इंजेक्शन हिकोबॉल का जो है वो मखसूस बैच फौरी तौर पर वापस लेने का हुक्म दिया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने हंगामी मेडिसिन को जो है वो रिकॉल नोटिस जारी कर दिया गया है। और इंजेक्शन हिकोबॉल 1 ml का बैच नंबर जो HT 13437 है उसको गैर ब्यारी करार दिया गया है। अप्रैल 2026 तक एक्सपायरी वाला बैच जो है इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पंजाब की रिपोर्ट में संगीन इंकशाफात हुए हैं। इंजेक्शन में कोबालामीन की मकदार और मेयार गैर तसल्ली बख्श जो है वो पाया गया है। और मजबूरा बैच सब स्टैंडर्ड और मिलावट शुदा करार दिया गया है। तमाम फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर्स को फौरी रोकने का हुक्म दिया गया है। होलसेलर और अस्पतालों को स्टॉक फौरी वापस करने की हिदायत की गई है। मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट से मुकम्मल स्टॉक वापस मंगवाने का हुक्म जारी किया गया है। शहरी बैच नंबर HT 13437 हरगिज़ इस्तेमाल न करें। नोटिस में कहा गया है कि नाकिस इंजेक्शन सेहत के लिए संगीन खतरा है और किसी भी साइड इफेक्ट की सूरत में फौरी जो है वो रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सूबाई फार्मा को विजिलेंस सेंटर से फौरी रब्ता करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। जी ठीक है सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत का जुमा और दीगर इज्तिमात के लिए हाई अलर्ट सिक्योरिटी प्लान तैयार। हसास मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहों को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की गई है। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों के बाकायदा इजलास मुनक्किद करने का हुक्म जारी किया गया है। कलअदम तंजीम और फोर्स शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी का हुक्म। असले की नुमाइश और ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। आपको बताते चलें कि हुकूमत का जुमा और दीगर इज्तिमात के लिए हाई अलर्ट सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। हसास मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहों को खसूसी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की गई है। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों के बाकायदा इजलास मुनक्किद करने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत का जुम्मा और दीगर इज्तिमात के लिए हाई अलर्ट सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। हसास मसाजिद, मदारिस और अमाम बारगाहों को खसूसी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत भी की गई है। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों के बाकायदा इजलास मुनक्किद करने का हुक्म दिया गया है। कलअदम तंजीमों और फोर्स शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी का हुक्म भी दिया गया है। IG पंजाब की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए वीडियो लिंक इजलास लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबा भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया गया है। RPOs, CPOs, मसाजिद, अहम तंसीबात की सिक्योरिटी का खुद जायजा लें। IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत आपको बता रहे हैं। IG पंजाब की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद किया गया है। लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबा भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म भी दिया गया है। RPOs, CPOs, मसाजिद, अहम तंसीबात की सिक्योरिटी का खुद जायजा लें। IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत। आपको बताते चलें कि IG पंजाब की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए वीडियो लिंक इजलास हुआ। लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। RPOs, CPOs, मसाजिद, अहम तंजीबात की सिक्योरिटी का खुद जायजा लें। IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत।